Now we are going to discuss about e-governance. So what the meaning of e-governance? E-governance is a stand for the electronic government, ICT. According to World Bank, e-governance refer to the use of government agency of information technology, internet, mobile that have the ability to transform relation with the citizen business. The Council of Europe described the e-governance as a functioning of the public authority and provision for the public service. UNESCO e-governance is the government in the electronic medium. Report of the working group on the convergence and the e-governance for the 12th 5-year plan submitted. E-government is the application for ICT and the smart government. There are 4 types of the interaction in the e-governance, that is government to citizen, government to business, government to government, that is in interagency relationship, and the government to employee. The second ARC of India has examined the about 4 types of the interaction, promoting the e-government smart way for the government. So government to citizen, that is the interface is created between the government and citizen, efficient delivery of the large range of public service. This expands the availability and the accessibility of public service. Choices with the government bring the availability of the 24 hours and 7 days. So that is e-government. Now next one, government to business, that was providing of the good and services to the seamlessly. Initiative can be transactional such as licensing, permits, the procurements and the revenue collection. Government to government, it is information for the government, also the increase the flow of the information of the services. And government to employees, and that was biggest employee, and like the organization, it has to interact with the employees on regular basis. So better delivery of the service, improve the interaction, citizen empowerment, more efficient, less corruption, greater convenience, cost reduction होना चाहिए, flatten organization, reduce paperwork, better planning, greater citizen participation, improve the relationship and restructuring. So इनिशिएटिव में सबसे पहले एक टास्क फोर्स आया था आईसीटी का 1998 में. देन मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ने 2000 में इसको एजेंडा दिया एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को इनेक्ट किया गया. देन आफ्टर देन फर्स्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई एंड नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्मार्ट गवर्नमेंट लाया गया. द स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च किया था ई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट लाइक ई सेवा, भूमि ई सेवा इन द आंध्र प्रदेश, भूमि इन द कर्नाटका, ज्ञानदूत इन द मध्य प्रदेश, लोकवाणी इन द उत्तर प्रदेश, फ्रेंड्स इन द केरला, ई मित्रा इन द राजस्थान. नेशनल ई गवर्नेंस प्लान्स आए थे जो कि आए थे 2006 में. ठीक है, एंड दैट वाज ए 27 मिशन था. ठीक है, उसके बाद में ई क्रांति, नेशनल ई गवर्नेंस प्लान, ई विधान, फाइनेंशियल इंक्लूजन, ई संसद, एग्रीकल्चर, नेशनल जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, रूरल डेवलपमेंट, सोशल बेनिफिट्स, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, आईटी रोड मैप, ई क्रांति, ये सारा कुछ. अब देखिए जो कि ई गवर्नमेंट का प्लान है, इट इज़ काइंड ऑफ सपोर्ट करता है कोर पॉलिसीज़ को. ठीक है, कोर इंफ्रास्ट्रक्चर को भी सपोर्ट करता है, जैसे कि मोबाइल सेवा हो गया, पेमेंट गेटवे, जीआई क्लाउड, टेक्निकल असिस्टेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, अवेयरनेस एंड द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. नेशनल पॉलिसी ऑफ द ई गवर्नमेंट कब आई थी? 2010 में इसको लाया गया. देन नोटिफाइड किया गया. Guidelines for the consistent, standardized and the reliable implementation. The national policy on the information technology, इसको ICT को इम्प्रूव किया गया. नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी बनाई गई. विजन फॉर द पॉलिसी इज़ टू बिल्ड द सिक्योर रेजिलियंट साइबर स्पेस. नाउ न्यू पब्लिक मैनेजमेंट क्या होता है? इट इज़ लेटेस्ट पैराडिगम एवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. बुक एंटाइटल री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट, डेविड ऑसबॉर्न और गेबलर की थी. 1992 में इसको पब्लिश किया गया. द न्यू पब्लिक मैनेजमेंट इज़ द सेकेंडरी इंटरवेंशन इन द पब्लिक एंड द फर्स्ट बीइंग द न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. न्यू पब्लिक मैनेजमेंट इज कॉइन्ड बाय द क्रिस्टोफर हुड. ही ऑल्सो एंटाइटल्ड द पब्लिक मैनेजर फॉर ऑल सीजन. ओके, द न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, मैनेजरलिज्म टू द गवर्नमेंट, मार्केट बेस्ड गवर्नमेंट बिटवीन द पब्लिक एंड प्राइवेट. तो इकोनॉमी हो गई, एफिशिएंसी हो गई एंड इफेक्टिवनेस, ये 3 चीज़ें हो गई. एम्फेसिस किया था इसने. कॉस्ट कटिंग करनी है, फाइनेंशियल इंसेंटिव, आउटपुट टारगेट, इनोवेशन, ट्रांसपेरेंसी, कॉम्पिटेंस, अकाउंटेबिलिटी, मार्केट ओरिएंटेशन, क्वालिटी को इम्प्रूव करना है. ठीक है,
द न्यू पब्लिक मैनेजमेंट जो है दैट इज़ मार्केट एज ए अगेंस्ट द स्टेट हैज़ ए की रेगुलेटर ऑफ द सोसाइटी. It involves a shift from direct provision of the service by government to indirect provision of the policy making, facilitating, providing information and coordination. And now the government पहले doer थी, now it is distributor. And the new public management suggesting the series of shifts also. Okay, so now there is a theoretical basis. तो एंटी ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच था, इंस्टीट्यूशनल प्लूरलिज्म है जिसमें कि हमें पब्लिक चॉइस थ्योरी लाया गया. कब लाया गया? 1960 में लाया गया था. और इसके जो मोस्ट प्रमोटर्स थे विंस्टन ऑस्ट्रोम बोलते हैं जिसको, ठीक है, जिनका नाम है ये. एंड रिप्लेसमेंट ऑफ द ट्रेडिशनल डॉक्ट्राइन टू द ब्यूरोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन. इनकी बुक का नाम है द इंटेलेक्चुअल क्राइसिस इन अमेरिकन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. और bureaucratic structure are necessary but not sufficient. So perfection in the hierarchical ordering of the professionally trained public service accountable to the single centers, ठीक है. And diverse democratic decision making, application economical logic to the problem of public service distribution, decentralization, popular participation in the administration, single center administration, monocentric, separation of policy from the administration, हायरार्किकल एडमिनिस्ट्रेशन एंड रैशनल एंड न्यूट्रल एडमिनिस्ट्रेशन. ऑलराइट. तो अदर अप्रोच जो है जैसे डाउन्स हो गए, टुलॉक हो गए, ऑल्सोन एंड निस्कानन, इन्होंने भी इसको फॉलो किया था. अब एक न्यू कॉन्सेप्ट है जिसको हम कहते हैं न्यू टेलरिज्म. सो न्यू टेलरिज्म एडवोकेट ए नंबर ऑफ प्रिंसिपल फॉर द ट्रांसफॉर्मिंग द ट्रेडिशनल मॉडल ऑफ वेबरियन मॉडल. ठीक है. तो इसने कहा कि हमें एप्लीकेशन करना है, परफॉर्मेंस एवेल्यूशन करना है, देन असाइन करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी रिवार्ड करना है, व्हाट इज़ द अचीवमेंट्स एंड एरर्स को दूर करना है, फॉलोइंग द प्राइवेट सेक्टर मॉडल ऑफ द प्रोडक्शन, इम्पोजिंग इंक्रीज कंट्रोल बाय मीन ऑफ इकोनॉमिकल एंड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. अब बताया क्या था कि न्यू पब्लिक मैनेजमेंट के कुछ एंटी गोल्स होते हैं जैसे कि पॉलिटिकल एडमिन डाइकोटोमी, हायरार्की रिडन ऑर्गेनाइजेशन, ओवर सेंट्रलाइजेशन, सुप्रीमेसी ऑफ द रूल्स की सुप्रीमेसी होती है. ठीक है. एंड दैट इज़ द कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो कि ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हमेशा रहते हैं. रैशनलिटी इन डिसीजन मेकिंग, इम्पर्सनल नेचर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, रिजिडिटी इन एडमिनिस्ट्रेटिव पावर एंड द इनवर्ड लुकिंग ओरिएंटेशन. ये एंटी गोल्स हो गए इसके. ठीक है. डाइकोटोमी भी एज ए एंटी गोल ही काउंट किया गया है. हायरार्की हो गया, ओवर सेंट्रलाइजेशन हो गया. ठीक है. ना कुछ गोल्स हैं अकॉर्डिंग टू द क्रिस्टोफर हुड. तो हुड ने भी इसके कुछ गोल्स बताए थे. क्रिस्टोफर हुड ने बोला, इसने एम्फेसिस किया था प्रोफेशनल मैनेजमेंट को, एक्सप्लिसिट क्या स्टैंडर्ड्स है उसको फॉलो करना है. ग्रेटर एम्फेसिस दिया गया था किसको? कंट्रोल को. शिफ्ट टू डिसएग्रीगेशन टू द पब्लिक सेक्टर, शिफ्ट टू ग्रेटर कंपटीशन, स्टेज ऑन प्राइवेट सेक्टर मैनेजमेंट एंड स्टेज ऑन ग्रेटर डिसिप्लिन. तो रोड्स ने कहा कि फोकस ऑन द मैनेजमेंट एंड क्वासी मार्केट है तो उसको भी फॉस्टर करना है, एम्फेसिस करना है, कॉस्ट कटिंग करनी है, वैल्यू फॉर मनी, स्टाइल फॉर द मैनेजमेंट. हमें कैटलिस्टिक गवर्नमेंट की तरफ जाना है, कम्युनिटी ओन गवर्नमेंट की तरफ जाना है, कॉम्पिटिटिव, मिशन ओरिएंटेड, रिजल्ट ओरिएंटेड, कस्टमर ड्रिवन, एंटरप्राइजिंग गवर्नमेंट, एंटिसिपेटरी गवर्नमेंट, डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट, मार्केट ओरिएंटेड गवर्नमेंट. ठीक है. It pursuing the above goal, the government in the different part of the world have used to the mechanism. Creation of the public organization, reducing size, corporatization, reducing budget, reforming performance measurement and evaluation, privatization, decentralization, contracting out, promoting openness, encouraging people participation and declaration of citizen charter. ठीक, ये हो गया हमारा पूरा कंप्लीट. अब कुछ बुक्स हैं विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. पहली बुक है वुड्रो विल्सन की द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, 87 में आई थी. कांग्रेशियल गवर्नमेंट 85 में आई थी और द स्टेट 89 में आई थी. गुडनाउ की है पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, 1900 में आई थी. एल डी वाइट की इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 1926 में आई थी. विलोबी की है प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 1927 में आई थी. टेलर की पीस रेट सिस्टम 1895, शॉप मैनेजमेंट 1903, आर्ट ऑफ कटिंग मेटल 06, प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट 1911. हेनरी फेयोल की है जनरल इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट 1960, एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी ऑफ द स्टेट 1923, जनरल प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 1908. मोनेरेले की ऑनवर्ड इंडस्ट्री 1931, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन 1939. ठीक है. मैक्स वेबर की द प्रोटेस्टेड एथिक्स, स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, द थ्योरी ऑफ सोशल इकोनॉमिकल ऑर्गेनाइजेशन.
गुलिक एंड उर्विक की पेपर ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 1937 में आई थी। उर्विक की मैनेजमेंट ऑफ टुमारो, द एलिमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 44, मेकिंग साइंटिफिक मैनेजमेंट 45, द पैटर्न ऑफ मैनेजमेंट 56। फोलेट की है न्यू स्टेट 1920, क्रिएटिव एक्सपीरियंस 1924, डायनेमिक एडमिनिस्ट्रेशन 1941। एल्टन मेयो की द ह्यूमन प्रॉब्लम है, सोशल प्रॉब्लम है और पॉलिटिकल प्रॉब्लम है, तीनों आई थी 1933 में ह्यूमन प्रॉब्लम, 45 में सोशल प्रॉब्लम, 47 में पॉलिटिकल प्रॉब्लम ऑफ इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन। बर्नार्ड की फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव 38 में आई थी, ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट 48 में आई थी, जो कि किसकी थी, बर्नार्ड की। मार्क्स की एलिमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 46 में एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट। साइमन की प्रोवर्ब्स 46 में, एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर 47 में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 50 में, फंडामेंटल रिसर्च 53 में, मॉडल ऑफ द मेन 58 में, ऑर्गेनाइजेशन 58 में, द न्यू साइंस ऑफ मैनेजमेंट 60 में, शेप ऑफ द ऑटोमेशन 65 में, साइंस ऑफ आर्टिफिशियल 69 में, ह्यूमन प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड मॉडल ऑफ थॉट्स। गोस का है रिफ्लेक्शन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 47 में, फ्रंटियर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। डेहल का द साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 3 प्रॉब्लम 1947, मास्लो डायनेमिक थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन 43 एंड मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी 54। मैकग्रेगर का द ह्यूमन साइड एंटरप्राइजेज 60 में, लीडरशिप एंड मोटिवेशन 66 में एंड प्रोफेशनल मैनेजर है जो कि है 67 में। हर्जबर्ग का है द मोटिवेशन टू वर्क दैट इज 59, वर्क एंड नेचर ऑफ मैन 1966। क्रिस सार्गरिस का पर्सनैलिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन 57, मैनेजमेंट एंड द ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट 71, ऑर्गेनाइजेशन एंड इनोवेशन 65 एंड इंटीग्रेटिंग इंडिविजुअल एंड द ऑर्गेनाइजेशन 64, ओवरकमिंग ऑर्गेनाइजेशनल की डिफेंस 90, लिकट की न्यू पैटर्न ऑफ मैनेजमेंट 61, न्यू ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन 67, न्यू वेज ऑफ मैनेजिंग द कॉन्फ्लिक्ट भी लिकट की ही है 76 में आई थी। रिक्स की इकोलॉजी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 61, प्रिज्मेटिक सोसाइटी 64, फ्रंटियर डेवलपमेंट 70, एडमिन रिफॉर्म एंड पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिवनेस 71, प्रिज्मेटिक सोसाइटी 73, अप्लाइड प्रिज्मेटिक 78 एंड डेवलपमेंट डिबेट 87। यचकल ड्रो की है पब्लिक एंड पॉलिसी मेकिंग 68, डिज़ाइन ऑफ पब्लिक साइंस 71, वेंचर ऑफ पब्लिक साइंस 71, फ्रैंक मेरिनी टुवर्ड्स द न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 1971, ड्वाइट वोल्डो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट 48, आइडिया एंड द इशू ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 53, कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एंटरप्राइजेस ऑफ पब्लिक पर्सपेक्टिव ऑफ स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। टेम्पोरल डायमेंशन भी किसकी थी, वॉल्डो की थी, 1970 में आई थी, एंड टाइम एंड टर्बुलेंस भी वॉल्डो की थी जो कि 1971 में आई थी। एंड्रू अरेटो की बुक है एसेंशियल फ्रैंकफर्ट रीडर 78 में आई थी, और डेविड ऑसबोर्न टेट री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट 92 में। अब मैकार्डी है, इसने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड सिंथेसिस दिया था। रोवाट ने बेसिस इशू ऑफ पब्लिक, विक्टर रूम ने लीडरशिप डिसीजन मेकिंग एंड लुथास ने ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, एंथोनी एमजे एजियोनी ने मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन, एंथनी डाउन्स इनसाइड ब्यूरोक्रेसी, जॉर्ज गान डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, एलन ने मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन, विक्टर थॉमसन ने मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन, रॉबर्ट प्रिस्नस द ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी एंड द फ्रेडरिक हर्जबर्ग द डेवलप मैनेजरियल चॉइस, फिलिप सेल्जिक ने लीडरशिप एंड द एडमिनिस्ट्रेशन, जॉर्ज फ्रेडरिक्सन न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, वाइट मैन एंड ऑर्गेनाइजेशन, लिंडा नॉर्विक द गोल्डन बुक ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, लीडरशिप टू 18th century, life and work of Elton Mayo and notes of theory organization, Michel Crozier the bureaucratic phenomena, Millet government and public administration, Stillman public admin concept and cases, Peter Blau the dynamic of bureaucracy, Baker administrative theory and public administration, Banis changing organization development, Douglas Down that was the human nature of organization, Road policy making, and Robert Dubin human relation, Alvin Gaudner pattern of the industrial bureaucracy, and the Golden Tulloch the politics of the bureaucracy, William Niskanen bureaucracy of the government, Appleby big democracy, policy and administration, morality, public administration, welfare state and citizen as a sovereign, Onward Teed art of administration purpose, and Dimmock ने philosophy of administration, न्यूमैन ने administrative action, मार्जन साइमन ने ऑर्गेनाइजेशन दिया था, स्मिथ थॉमसन और साइमन ने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दिया था। निकोलस हेनरी की बुक है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक अफेयर, पीटर सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन थ्योरी एंड पॉलिटिक्स, पिफनर प्रिस्नस की पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिमोक की पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, निग्रो की रीडिंग एंड डॉक्यूमेंट्स, एंड वार्नर की द प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, चार्ल्स वर्थ थ्योरी प्रैक्टिस ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डाइसी की इंट्रोडक्शन टू स्टडी ऑफ लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ब्रुक
की है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड डेमोक्रेटिक सोसाइटी। सेक्लर हडसन की ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। कुछ ऑर्डेनाल्ड की है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। मिलेट की मैनेजमेंट इन पब्लिक सर्विस। टेरी की है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। न्यूमैन की है एडमिनिस्ट्रेशन एक्शन। स्टाहल की है पब्लिक पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन। निग्रो की है मॉडर्न पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गोलम्बस की है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज ए डेवलपिंग डिसिप्लिन एंड प्लूटो की रिपब्लिक। अरिस्टोटल की पॉलिटिक्स। मैचियावेली द प्रिंस। होब्स लेवियाथन। लॉक ट्रिटी ऑफ द सिविल गवर्नमेंट एंड ये सारी की सारी बुक्स हैं। इसके बाद पीटर ब्लाउ की ब्यूरोक्रेसी इन मॉडर्न सोसाइटी। थॉमसन की है ऑर्गेनाइजेशन इन द एक्शन एंड ब्रायन चैपमैन की द प्रोफेशनल गवर्नमेंट। सेल्डम की है फिलोसॉफी ऑफ मैनेजमेंट। ड्रकर की द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट। ग्लेडन की इंट्रोडक्शन टू पब्लिक एसेंशियल टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। हैरिस की पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन द मॉडर्न सोसाइटी। किंग्सले की रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी एंड द चार्ल्स वर्थ की गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। So this all related to the chapter